Boys, today we are going to discuss a very important biomolecule. जैसा कि आपके NCERT बुक में कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम बना हुआ है, तो सबसे पहले हम NCERT के बच्चों को बताएंगे कि कैसे आप कोलेस्ट्रॉल के डायग्राम को बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे और कैसे इसे याद रखेंगे। अक्सर इन MCQ में 4 डायग्राम बना के दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है इसमें कौन सा सही है या ये क्या है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, ठीक, एज इट इज़ मैंशन इन द NCERT बुक्स। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। ओके, कोलेस्ट्रॉल इज ए टाइप ऑफ ए लिपिड। ओके, इज ए टाइप ऑफ लिपिड and because it contains OH group and we call it as a sterol. And why sterol? Because having a OH group in the steroid nucleus, इसलिए इसको हम स्टीरोल भी कहते हैं। ओके, now what is cholesterol? Cholesterol is a type of a lipid sterol and it is a waxy substance. Okay, now you see the general formula of cholesterol, C27H45OH. So remember, carbon, how many? 27 carbon atoms are there, 45 hydrogen atom and one OH group is present. And always remember the most important this. And sometimes what happens, OH is not mentioned, then we can have C27H46 and O. तो ये भी फार्मूला जो है हो सकता है। तो आपके सामने ही हो गया। अब हम आपसे बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर एज मेंशन इन योर NCERT बुक, जरा इसको देखिए। इट इज ए टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड। वाई टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड? बिकॉज इट कंटेन 4 रिंग्स। रिंग A, B, C, D, 4 cycles are there. A and B, C, these are the 3 6-membered cycle, and the 4th one is 5-membered cycle, and they are arranged in this way: A, B, C, D. Okay. First of all, see the ring number A, and then B, and then C, and then D. Ring A and ring B, ये दोनों साथ साथ हैं, टुगेदर है, पहली चीज। तीसरी चीज, ये जो C वाली रिंग है ये B के साइड में लगी हुई है और D वाली जो है वो C के बगल में लगी हुई है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास 2 6-membered A एंड B हैं। इसके ऊपर जो है एक 6-membered है और एक आपकी 5-membered है। ठीक है, तो आपको इसको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब आपको बता रहे हैं मोटा मोटे तौर पे, ये जो 1 और 2 और 3 4 इसके जो रिंग है टेट्रासाइक्लिक हैं, ये मिल करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं? स्टीरॉयड न्यूक्लियस। ये देखिए, योर क्वेश्चन, इन स्टीरॉयड न्यूक्लियस हाउ मेनी रिंग्स आर देयर? 4 रिंग्स आर देयर, 3 6-membered and 1 5-membered cycle is there. Okay, steroid nucleus. Now another very important question, that the name of this steroid nucleus is क्या है? What is the name of this steroid nucleus? So that you have to learn. Cyclopentano. Remember, because cycle what is ring? Cyclopentano. It is pentano. ठीक है, per hydro, nowhere OH group is attached and phenanthrene nucleus. And this one is your phenanthrene nucleus. ये देखिए, once again I am repeating. Cyclopentano per hydro phenanthrene nucleus. So what is the name of this steroid nucleus? Your answer is cyclopentano per hydro phenanthrene nucleus is there. Okay, now you see, if we see the cholesterol structure, clear cut always in fatty acid, because it is a very important question. It is a amphipathic molecule. This is the, ये देखिए, like fatty acid, it is a amphipathic molecule. Why amphipathic? Because it contains polar head. Polarity or a charge is due to OH group. And remember, hydroxyl group of polar head is very small in the cholesterol.
Another very important question, that this hydropolar head is attached on the third carbon of the A ring. ठीक है. Now let us see how many carbon atoms are there. As I already mentioned you, 27 carbons are there. Let us now count. कार्बन नंबर 1 and 2 3 4 5. रिमेंबर 5 जब आएंगे तो आप इधर याद रखें, यह 6 and 7 8 and 9. जब 9 पे आ जाएंगे आप तो ये 10 इधर आ जाएगा. 10 के बाद जो है आपको आना है, ऊपर आना है 11 12 13 14 एंड देन 15 and 16 and 17. रिमेंबर कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 15 16, दे आर इन द steroid nucleus ring. Okay, another very important feature for you, that carbon number 18 and carbon number 19, they are present in the side chain. Another very important question, carbon number 18 is present between ring C and D at 13 number. Okay, and 19th carbon is present between A and B at 10th carbon. Okay, now let us see this steroid nucleus, ठीक, is also attached to what? Hydrophobic hydrocarbon tail, and it contains 8 carbon chain. That the side chain, very important question, of a cholesterol molecule is attached to the steroid nucleus at carbon number 17. Okay, the side chain has 8 carbon. So carbon number 17 and 18 and 19, and here it is 20, and then 21 and 22, 23, 24, 25, 26 and 27. So now the total carbon 27 is clear to you, and hydrophilic polar head attached to third carbon is clear to you, ठीक है, at the third carbon atom. Okay, and the name you already know, cyclopentanoperhydrophenanthrene nucleus is there, and it is a amphipathic molecule. Okay, so this is the general structure of this cholesterol. And remember, जब इसको आप बनाएंगे तो 4 रिंग याद रखेंगे, A B C D, और साइड चेन जो है, ये मैं फिर गोला खींच रहा हूँ, ये आपकी 8 कार्बन की है जो 17वें कार्बन पर जुड़ी हुई है. ये है दुनिया का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिपिड मॉलिक्यूल लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है, जो आपके सामने मैंने आपको इसका जनरलाइज स्ट्रक्चर आपको बताया है. नाउ आई वुड लाइक टू हैव सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस. वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू ऐड, दैट द नेम ऑफ द स्टीरोइड न्यूक्लियस इज CPP. P and P, 3 P are there. So now you can just expand it, cyclopentanoperhydrophenanthrene, ठीक है, cyclopentanoperhydrophenanthrene ring. Okay, now you see, cholesterol molecule is the most highly decorated biomolecule, and it is a micromolecule because its molecular weight is less than 1000 Dalton. Okay, and another very important, it is a tetracyclic compound. How many? 4 rings are there, and they are A, B, C, D. Okay, and it has won 13 Nobel Prize only on this one molecule, that is your cholesterol. And remember, it is related to your biomemory in animal kingdom, not in plant kingdom. ठीक, cholesterol, it is a type, what type? Structural steroid lipid, and found in the biomembrane, mostly in the animal. But in some of the plant, stigmasterol is also found in plant, and ergosterol in fungi. These are the some exception where these are also found, but normally it is present in the animal. Another very physical property related to cholesterol जो है, भौतिक इसके गुण जो है वो ऐसे हैं, ये टेस्टलेस है, स्वाद रहित है, इसमें कोई किसी प्रकार की गंध नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, और ये सफ़ेद रंग का रवे होते हैं, वाइट क्रिस्टलन पदार्थ होते हैं, दीज आर वाइट क्रिस्टलन होते हैं, ठीक है, सॉलिड कंपाउंड है, एंड फाउंड इन एनिमल. आपने देखा पोलर बियर है, वेल है, दे हैव वेरी थिक फैटी टिश्यू. कोलेस्ट्रॉल जो है आपके 2 मेजर पार्ट हैं, स्टीरॉयड न्यूक्लियस प्लस हाइड्रोकार्बन साइड चेन. जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि इसमें जो है C27 कार्बन होते हैं टोटल, तो स्टीरॉयड न्यूक्लियस में आपका जो है 19 तक है और उसके बाद बाकी उसमें ऐड होते हैं और हाइड्रोकार्बन आपके। और आपको ये भी मैंने बताया था कि इसकी जो है कोलेस्ट्रॉल के 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, एंड वन वाज पोलर हेड एंड दैट इज ओनली ड्यू टू OH ग्रुप, ओके, एंड दैट इज अटैच्ड एट द कार्बन नंबर 3rd, एंड द नॉन पोलर टेल जो है इट इज़ ये बनी हुई होती है, इट इज़ मेड ऑफ 2 थिंग, स्टीरॉयड न्यूक्लियस एज वेल एज साइड चेन। और स्टीरॉयड न्यूक्लियस को आपने अभी अभी बताया है कि CPP साइक्लोपेंटेनोन पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग होती है जो कि साइड चेन 8 कार्बन वाले से हाइड्रोकार्बन की चेन से भी जुड़ी होती है। इन दोनों में सबसे बड़ा क्या मज़ेदार बात है कि जो पोलर हेड है OH ग्रुप 3rd कार्बन, ये पोलर हेड है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, अट्रैक्ट टुवर्ड द वाटर, वाइल रिमेनिंग पोर्शन रिमेन्स अवे फ्रॉम द पानी, ये जल से दूर रहता है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपल्टिंग यानी पानी को प्रतिकर्षित करता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ठीक है, सो आप क्लियर कट आप देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा टैकोरेटेड बायोमॉलिक्यूल है और ये टेस्टलेस है और इसके 2 कंपोनेंट आपको बताया मैंने, स्टीरॉयड न्यूक्लियस और साइड चेन होते हैं और OH ग्रुप के कारण क्योंकि बहुत ही छोटा है उसी कारण ये पोलर हेड है और इसके ऊपर चार्ज हो सकता है, बाकी नीचे वाली टेल में जो है इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। और अब हम आपको इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताएंगे। सो नाउ अब हम लोग जो है कोलेस्ट्रॉल की बायोलॉजिकल महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वी हैव टू स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये बात को ध्यान रखें। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में सबसे पहला सवाल यह है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है और इसकी मोटाई जो है वो 70 या 75 थिकनेस एंगस्ट्रॉम होती है। तो बायोलॉजिकल कोलेस्ट्रॉल का सिग्नेचर पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी इसकी जानकारी होनी चाहिए। फॉस्फोलिपिड जो होती है वो कांस्टेंट आपकी बाई लेयर होती है, ऊपर भी होती है 20 एंगस्ट्रॉम की और नीचे भी होती है। ठीक है, तो इसका जो पोलर हेड जो होते हैं वो बाहर की तरफ पानी की तरफ और पानी की तरफ अंदर की तरफ होते हैं, और जो नॉन पोलर हेड होते हैं क्योंकि ये भी आपके एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल हैं तो मोस्टली ये फॉस्फोलिपिड। फिर आप पूछते हैं कोलेस्ट्रॉल कहाँ है, तो ये हम आपको बताते हैं एनिमल किंगडम के बायो मेम्ब्रेन में जो मैंने आपको दिखाया ये लाल लाल रंग के जो है ये जो है कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी हैं। अगर ये मेम्ब्रेन में ना हो तो हमारी मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी डगमगा जाती है। तो उनके बारे में आपको जानकारी आज प्राप्त करनी है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायो मेम्ब्रेन में, इसको बनाए रखने में क्या योगदान है। तो वो हम आज देखते हैं। अभी देखिए पहला सवाल, कोलेस्ट्रॉल जो है एसेंशियल कंपोनेंट है किसका, एनिमल सेल मेम्ब्रेन का। क्योंकि एनिमल सेल की बड़ी खास बात होती है, इनको कभी हाई टेम्परेचर में चले जाते हैं, 56 डिग्री है, कहीं पर 0 डिग्री है, तो एकदम वेरी हाई एंड हाई से वेरी लो, तो उसका प्रभाव जो है हमारी बायो मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपको पता होना चाहिए अगर हमारी मेम्ब्रेन नॉर्मल नहीं है तो वो एक्सचेंज नहीं करेगी। जैसे कि आपके फेफड़े होते हैं तो स्क्विमस एपिथेलियम में सेल मेम्ब्रेन में गैसों का आदान प्रदान होता है, और अगर वो मेम्ब्रेन मोटी हो जाए, उसमें ज़्यादा फैट आ जाए तो एक्सचेंज नहीं होगा, तो आपको सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, उस तरह की दिमाग में आप चीज़ें रखिए। हम आपको बताते हैं अभी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एनिमल सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ नॉट ए जस्ट ए कंटिन्यूस, नहीं है, लगातार नहीं है। फॉस्फोलिपिड में कई जगह पर ये लगती है। इसका जो सांद्रण है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। आप जैसे किसी खीर में मेवे डाल देते हो तो गाढ़ापन आ जाता है, तो अगर कम कर दो तो पतली हो जाती है। ऐसा इसका भी कमाल है। नाउ सी, तो पहला सवाल तो आपका क्लियर होगा, इट बहुत ही महत्वपूर्ण है, एसेंशियल कंपोनेंट है एनिमल मेम्ब्रेन का। और यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं एथीरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक होता है या हमको ब्लड वेसल जो होती है क्या होता है वो ज़रा देखने वाले हैं। नॉर्मल ब्लड वेसल जो होती है, जैसे आपकी पाइप होता है तो उसमें से पानी फ्लो करता है, तो हमारी वेसल्स में ब्लड का फ्लो होता है। तो इनका जो ल्यूमन होता है वो नॉर्मल जो होता है वो आपका इतना जो आपका ल्यूमन होता है। ठीक है, अगर किसी आदमी में ठीक है एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बन रही है, तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है इसके भीतर की लाइनिंग में जो है जमा हो जाती है। तो जब जमा हो जाती है तो ब्लड वेसल की मोटाई जो है वो काफ़ी मोटी हो जाती है
और ल्यूमन जो है बहुत ही कम हो जाता है। अंदर का घेरा देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा ब्लड जा सकता है। और इसमें क्या हुआ, ये इसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहेगा और इसमें क्या होगा, जब इसके ऊपर दबाव पड़ेगा अंदर का ल्यूमन कम हो जाएगा तो इसका ब्लड प्रेशर जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखिए, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल इज नोन एज, जिसे हम एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और उसके जो थक्के जम जाते हैं, जैसे हमारे दांत के ऊपर पीले पीले थक्के जाते हैं, प्लेक्यू जम जाता है, ऐसे ही ये वसा के कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से जो है जो डिसीज होती है वो आपका एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्यू के कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ड्यू टू एक्युमुलेशन, संग्रह करने के कारण किसका, कोलेस्ट्रॉल का। कहाँ पर, और सॉलिड हो जाता है और अंदर की लाइनिंग में जो है ब्लड वेसल में ये जम जाता है। उससे जो अंदर की गुहा जो है ल्यूमन है दैट स्लोली गेट नैरो हो जाता है और इसके नैरो हो जाने से इसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उससे हाइपरटेंशन हो जाता है। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल ऑन द इनर लाइनिंग द ब्लड वेसल reduces the size of the lumen and it increases the hypertension, and because hypertension blood pressure also is increased and that also affects the function of our heart। ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा हार्ट भी फेल हो सकता है। ठीक है, अब जरा देखिए, वाइट से मैंने आपको ये बता दिया। अब जरा देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मेंटेन द फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी, मेम्ब्रेन को बराबर पतला फ्लूइड बना। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, द मॉलिक्यूल मस्ट फ्लो, और अगर वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी मेम्ब्रेन डायनेमिक नहीं रहेगी। और अगर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो उसको क्या है, सॉलिड कर देगी। तो किसी मेम्ब्रेन को पतला करना या उसको ठोस बनाना ये डिपेंड करता है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है। सो रिमेंबर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर एज वेल एज द अमाउंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द मेम्ब्रेन play a very important role in maintaining the rigidity and the fluidity of the cell membrane। ओके, ये आपको बता दिया। क्यों, ये फॉस्फोलिपिड के साथ अंदर धस करके इंटरकैलेटिंग मतलब फॉस्फोलिपिड के बीच में जगह जगह लग जाती है। ठीक है, तो उसको जो है वो अपनी ज़्यादा पतली नहीं होने देगी। सॉलिड है तो पतली कर देगी, पतली है तो उसको ठोस कर देगी। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन जो है, आखिर में हम आपको बता रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द रिजिडिटी एंड द फ्लूइडिटी ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन टू हैव ए नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर द एक्सचेंज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज from external environment to internal environment। Okay, this is all about cholesterol today। Thank you very much। नमस्ते।